سوچا نہیں ہے ابھی تک. آپ لوگ کچھ بتائیں گے کیا سننا؟ گرو جی پازیٹیوٹی میں بھی ہو تو سب دور دور ہو سکتا ہیں؟ ہے. پازیٹیوٹی سکاراتمکتا ہاں کیا ہر چیز میں ہیں؟ پازیٹیوٹی دیکھیں ہر چیز میں پھر وہ سنساری ہو جائے یہ سب فالتو بات ہے. گا. دیکھو کیوں کہ دیکھے گا کون؟ ہاں وہی شریر ہی دیکھنا. پازیٹیوٹی دیکھنا ہی اچھا ہے. دیکھنا پازیٹیوٹی میں ہی رہنا اچھا ہے، مگر یہ کہنا غلط ہے. رہو گی کیسے؟ رہنے والے تو وہی نگیٹو ہو، تم ہی تو رہو نا. اور تم نگیٹو ہو تو پازیٹیوٹی آئے گی کیسے یہ پوچھو. کیا وہ آتی ہے، لانا نہیں. کیا تم لانے کی یہ گدھے ہے جتنے پروچن کر رہے ہیں. یہ گدھے میں اس لیے کہتا ہوں میرے کوئی دشمنی نہیں ان سے، میری کوئی لڑائی نہیں ان سے، مگر میرے کو خوف آتا ہے اندر سے، ٹیش آتا ہے کہ تم کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو یار. ہے کچھ بھی ہو تو بولو پازیٹیوٹی رکھو، پازیٹیوٹی رکھو، پازیٹیو ہو جاؤ. پازیٹیو ارے تم کیسے ہو سکتے ہو بھیا؟ یہ بتاؤ نا کیسے ہو سکتا ہو. میں بتا رہا ہوں کیسے ہو سکتا. دیکھیے پازیٹیو ہونے کے لیے میں ایک ہی بات پہ زور دیتا ہوں ہر بات پہ. ایک دن ان نے پوچھا، بہت اچھا سوال پوچھا تھا کیا، اور وہ سب کے لیے بہت اچھی بات ہے. ان نے پوچھا تھا کہ آپ پرمارتھ کی بات کرتے ہو، پروپکار کی بات کرتے ہو، پروپکار کرنا چاہیے 24 گھنٹے ہم کو، پوری زندگی لگاتار پرمارتھ میں ہی جینا چاہیے. وہ کیسے؟ ہم تو پرمارتھ کا ارتھ بھی نہیں سمجھتے. میں نے کہا بالکل نہیں سمجھتے، اور نہ میں نے سمجھایا کبھی. دیکھنا کیوں کہ پرمارتھ کا کوئی ارتھ نہیں بتایا جا سکتا. سبھی میں کہنا چاہتا ہوں جو بات اب آ رہی ہے، پازیٹیوٹی کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی بھی اچھی چیز کی پریبھاشا نہیں ہے. پھر نگیٹیوٹی نہ ہو اس کو پازیٹیوٹی کہتے ہیں. بس تو نگیٹیوٹی کو نکالیں. کیا وہ کیا جا سکتا؟ پرمارتھ کی بات آئی کہ پرمارتھ کس کو کہیں گے؟ سیدھی سچی بات، بہت سارا سوارتھ نہ ہو. دیکھو سوارتھ نہ ہو، ٹوٹل سوارتھ نہ ہو. کبھی بھی میں اپنے لیے کچھ بھی نہ کروں، کچھ بھی نہیں. جبکہ ابھی 7% کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے. سب چیز میں دیکھتے کہ میرا کیا فائدہ ہوگا، میں ایسا کروں تو کیا ملے گا، یہی دیکھتے ہیں. یہ دیکھنا بالکل بند ہو جائے، 100% بند ہو جائے. نہ میرا نہ میرے والوں کا، میرا ہی ہے وہ بھی ہے. جہاں میرے والوں کا کر رہے ہیں وہ بھی میرا ہی کر رہے ہیں. اب سوچا نگیٹیوٹی بھی ہوئی. کیا ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمی ہے تو اس کی پورتی کرنا چاہتے ہیں. دیکھ میرے میں یہ کمی ہے، میرے کو یہ چاہیے ہے، تو اس کی پورتی. زندگی اسی کا نام ہے، زندگی بھر کمیاں دیکھنا اور کمیوں کی پورتی کرنے کی کوشش کرنا، پریاس کرنے کا نام زندگی ہے. پھر نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم کو چاہیے ہی نہیں. پھر کسی کا فائدہ کیا کر سکتا ہوں؟ 24 گھنٹے ہمارے اندر لگاتار ایک ہی چیز ہونا چاہیے کہ دوسروں کا فائدہ کیسے. یہ پازیٹیوٹی. اب کیسے کہتے پازیٹیوٹی لاؤ، پازیٹیو رہنا چاہیے، 24 گھنٹے پازیٹیو رہنا چاہیے. ابھی ایک سوال پوچھا ایک نے
कि बोला हमारे यहाँ गली में एक रिक्शे वाला आया रात को, और दो कुत्ते बैठे थे, उनको चढ़ा दिया रिक्शा। तो एक तो मर गया, मगर दूसरा मरा नहीं, चोट टेल हो गया, वहीं पड़ा। अब वो रात भर से चिल्ला रहा। अब तरह सारा कैसे हम क्या करें, उसको गोली मार दें, जहर खिला दें, जिंदा तो हम कर नहीं सकते, ठीक तो हम कर नहीं सकते हैं। और बहुत बहुत तकलीफ और क्या करना चाहिए। मैंने क्या क्या करना चाहिए, तुम्हें क्यों करना चाहिए ये देखो हैं, तुम्हें क्यों करना चाहिए, तुमको सिखा दिया इन गधों ने कि दया करना चाहिए हैं। अब कितनी बड़ी बात है, ज्ञान है, तुम इसको ज्ञान समझते हो कि बेचारा तड़प रहा है, तो हमको मदद करना चाहिए, हमको दुख होना चाहिए, हमको दुखी होना चाहिए। बोला हम बहुत दुखी हैं। मैंने कहा काहे को दुखी हो, वो उसके कर्मों की सजा भुगत रहा। ये सीखो उससे तो कि ऐसा कर्म ना करें ताकि ऐसी मौत हो हमारी है। भाई एक मर गया, रिक्शा दोनों पर चला, एक मर गया, उसकी थोड़ी अच्छी करनी रही होगी, एक तड़प रहा है, उसकी करनी ऐसी रही होगी। हम काहे को चिंता करें हैं। ये दुख दूर हो गया आपका। बोला हम तो बहुत दुखी हैं। मैंने कहा क्या मतलब दुखी रहने से हैं, क्यों दुखी रहो है? ये पॉजिटिविटी है। हमको ये क्या सिखाते हैं, दया करना चाहिए जीवों की, करना नहीं चाहिए, होना चाहिए। करना तो फिर कौन कर रहा है, देखिए पॉजिटिविटी लाओ, ये कौन लाए, वही मन। वही मन जो हमको गर्त में गिराता है, गड्ढे में गिराता है, वही मन अब पॉजिटिव लाना शुरू कर देता है। और उसमें बहुत मजा है, जिंदगी भर यही तो कर रहा है। एक बार गड्ढे में जाते हैं, दूसरी बार बाहर निकलने की बात करते हैं। अरे कुछ करें ही नहीं तो कहाँ गड्ढे में गिरेंगे, और नहीं गिरेंगे तो बाहर निकलने की जरूरत क्या है। गड्ढे में गिरेंगे ही नहीं क्या। कभी भी हम स्वार्थ की बात ना सोचे, हम सकाम न रहें, परमार्थ ही करें। अब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देखिए आज हमारे यहाँ की बात है यहीं पर। अब चूहे तकलीफ देते हैं तो पिंजड़ा रखा, पिंजड़े में आ गया चूहा, उसको मैंने बाहर रख दिया, आपको कहा कि इसको ठिकान लगा दो है। और हमारा ठिकान लगाना दूसरी तरह, देख करके देख लिया। अब दया करना चाहिए तो उनको कहीं दूर जाके छोड़ के आओ। हमने देखा कितनी भी दूर छोड़ आओ, वो तो वापस आ जाते हैं क्या। उनको इतना सेंस होता है कि वो एक ही बार में उधर से गए निकले हैं, तो वो सूंघते से पता नहीं किससे उनको वो रास्ता पता होता। वो एक दो दिन में देख लो वही चूहा फिर आ जाएगा। हमने कहा ऐसा नहीं करना। फिर किसी ने बताया कि पानी में डुबा दो इसको पिंजड़े से, मर जाएगा, फेंक दो बस है। अब उनको कहा तो मैंने कर देंगी ये, तो पिंजड़े में तो इन्हें डुबा तो दिया, मगर पूरा नहीं डूबा। अब पूरा नहीं डूबा तो तैरता रहा रात को रात भर ऊंचे पानी में, पिंजड़े में नहीं मारा, टाइम को मारेगा, जब डूबेगा तो ही मारेगा। अब वो रात भर तड़प रहा था है। चाहते तो एक मिनट में खत्म कर सकते थे, अब नहीं किया तो फिर सुबह करना पड़ा है। अब वो जरा सी गलती में वो रात भर तड़पा, मगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तड़पना था उसको, उसके घर में ऐसे रहे होंगे हैं। नहीं तो ये चीज इनको भी समझ में आ गई होती कि इसको डुबाएं तो पूरा डुबा
है, मरे नहीं तब तक। अब उसको लिखा था इतना तड़पना, तो तड़प गया, क्या चिंता करें। देखिए, है ना, हमको अपने को बचाने की जरूरत, ना किसी को बचाने की जरूरत। अरे मारने वाला वो ही, बचने वाला को, हमारा बेटा हो कि भाई हो कि कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ कितने ही आते हैं, कितने ही जाते हैं। 1 लाख 1 करोड़ 40 लाख तो भारत में ही रहते हैं मनुष्य। और ये कौन सा सही आंकड़ा है? हमको मालूम कैसे गिनते हैं लोग, गिनती लगाते हैं जनसंख्या की, है कोई सही आंकड़े तो है नहीं। और फिर दुनिया में ऐसे कितने होंगे, और रोज कितने मरते होंगे, रोज कितने पैदा होते होंगे, तो कितने तड़प रहे होंगे, कैसी कैसी बीमारियां में पड़े होंगे लोग, हैं। तो हमको भी होगा, आपको भी होगा, उसको भी होगा, इसको भी होगा, सबको होगा। मगर यदि हम पॉजिटिव हैं तो दुख नहीं होता। देखिए, कबीर का एक दोहा है, देह धरे का दंड है सब काहू को होय। देह धरे का दंड है सब काहू को होय, कोई नहीं बचेगा इससे। क्या दंड है? दुख पाना। देह धरी है तो दुख में तो जीना, पूरी जिंदगी दुखी रहोगे। देह धरे का दंड है सब काहू को होय, पर ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोय। ज्ञानी अपने ज्ञान से भुगतता, उसको तकलीफ नहीं होती। क्या क्या तकलीफ मन की है, तकलीफ है ही नहीं। तकलीफ मान ली हमने, बाप रे, अभी आँख चली जाए तो बाप रे कैसे जिएंगे। अरे बिना आँख वाला जी रहा कि नहीं? उसने भी मान लिया कि बाप रे बहुत तकलीफ है मेरे को, तो तकलीफ में। और जिसने नहीं माना वो मजे में हो, वो कहता और आराम मेरे को, कुछ दिखता ही नहीं, काय को दुखी हो। सुखी होने का तरीका, उसको आंख नहीं होना सुखी होने का तरीका है, बोलिए। और एक हो तो मर जाए रो रो के, बाप रे बिना आंख के कैसे जी रहे हैं। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रहो। ज्ञानी को ज्ञान है तो बाप रे, कुत्ता हमारी गली में रात भर से चलाता रहा, हमको तो नींद नहीं आई, रात भर सो नहीं सके। क्या वो आवाज कर रहा था, नींद आई हो, वहां तक ठीक है, बाकी तो कोई फिक्र नहीं है। भाई उसके वो भुगते, हमारी हम भुगतेंगे। क्या हमने वो चूहा बना ही इसलिए है कि उसको जैसे कर्म किए चूहे की योनि मिली है। हमने कुछ अच्छे कर्म किया तो मनुष्य की योनि मिली। अब मनुष्य की योनि में भी आप फिर बुरे कर्म करेंगे तो फिर चूहा हो बनने है। तो हम अपने देह धरे का दंड है सबका को होना है, मगर अकलमंदी है तो। अभी हमने फैसला लिया कि अब मैं बीमार पड़ूंगा तो इलाज निकालूंगा, मरा जा रहा आदमी है, घर वालों की जान खा जा, इतना कमा के रखा मैंने, ये इतने प्रॉपर्टी दी मैंने, मेरा इलाज नहीं करा रहे हैं, बदनाम करते घर वालों को है। अब हमने देख लिया कि भाई अब 75 साल के हो गए, मरने लायक तो हो गया शरीर है, अब बचा क्या करेंगे इसको। बीमार हो भी गए तो इसको बचा के किस काम में लेंगे, हैं? तो तकलीफ भी पाना है। अब बचा भी लिया, और जवान तो कर नहीं सकता है कोई दुनिया में ऐसा डॉक्टर जो फिर से बच्चा बना दे मेरा, या जवान बना दे, नहीं। फिर भाई अभी कमजोरी और बीमारी की कमजोरी प्लस डबल कमजोरी, और उसके बाद इलाज हो गया, नहीं मरे तो डबल कमजोरी के साथ क्या क्या करेंगे जी के? न किसी काम के, नहीं बिस्तर पर पड़े, लेटरिन भी नहीं जा पा रहे उठ के, क्या करेंगे पढ़ के? इससे अच्छा मर जाना अच्छा। कहा करो इलाज, इलाज नहीं करेंगे तो। मेरे एक बहुत अच्छे भगत आते हैं, क्या करीब 15-20 बरस से आ रहे हैं, बहुत ज्ञानी।
اس کے یہاں پہلا لڑکا ہوا تھا، لڑکا قریب 4 سال کا ہو گیا تھا، اور میرے یہاں آنے لگ گیا، تو وہ لڑکا کو ایسی بیماری ایک رہتی ہے بچوں میں کہ نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، پڑے رہتے ہیں۔ بھوجن کرا دو منہ میں ان کے، بھوجن کر لیں گے، لیٹرین آئے گی تو بستر میں لیٹرین کر لیں گے، باتھ روم آئی تو وہ بھی وہیں بستر میں، نہ وہ اٹھ سکتے ہیں، نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ بتا سکتے ہیں۔ ایسی بیماری ایک رہتی بچوں کو، وہ 15-20 برس جیتے، وہ 3-4 سال کا تھا، وہ کیا گندگی میں رہتے ہیں بستر پہ، تو انفیکشن بھی بار بار ہوتا، بیمار بھی بہت ہوتے ہیں ایسے بچے۔ اب وہ بار بار بیمار ہوتا ہے، یہ غریب آدمی بیچارہ بڑا پریشان۔ اب یہ کیا کرے، جب بیمار ہو جب سرکاری اسپتال میں بھرتی کروا دے، 8 4 دن وہاں اس کے ساتھ رہے، ٹھیک ہو جائے، واپس جائے، پھر سے 6 مہینے میں بیمار۔ بولا ہم تو گرو جی پریشان ہو گئے کیا، تو میں نے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بولے وہ تو کہتے ہیں کہ اس کو ایسی بیماری کی ہے 15 برس سے 20 برس جیے گا کیا، اور ایسے ہی پڑا رہے کیا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا جب کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو مرنے دو نا، جیا کے کیا کرو گے؟ تو بول کیا زہر دے دیں کیا، اپنا بچہ ہے اس کو کیسے مارے؟ میں نے کہا تم کا مارتے ہو تو بھگوان مارے گا ہے؟ ارے بھائی بیمار ہو علاج مت کرا، چھٹی پا یہ دیکھو۔ انہوں نے کہا یہ اچھا آپ کی نہیں کروانا، میں نے کہا مت کرو۔ 2-3 مہینے میں پھر بیمار ہوا، نہیں کرا علاج، مر گیا۔ دوسرا اتنا بڑھیا لڑکا ہوا، بڑا گیانی، بڑا سمجھدار ہے، اب بھی لڑکا ہے اس کو، یہ پازیٹیوٹی ہے۔ اور سوچنے کی ہم کو وہ سکھا دے کہ باپ رے ہمارے ہی بیٹے کو مار ڈالیں کیا، علاج نہیں کروائیں کیا؟ ارے بھائی مارا کہاں ہم نے، بھگوان نے بیمار کیا اس کو، اب بھگوان ٹھیک کر دے تو ہم اس کی سیوا کر ہی رہے ہیں۔ اب ہم علاج کر کے اس کو بیمار کا بیمار بنائے رکھیں، اس کو تڑپائیں، ایسا کیا کریں؟ مر گیا وہ۔ میں نے اس کو صلاح دی، اور ایسے 1-2 لوگوں کو اور اسی بیماری میں صلاح دی، ان کے بچے بھی ایسے ہی مرے، کیا ہو گیا؟ کئی بڈھے لوگ 4-6 ایسے ہوئے کہ جو میری وجہ سے مرے، کیا پاپ ہے اس میں؟ مگر تم کو سکھا دیا کرو باپ لگے گا، اور یہ تو فلاں اتنی بری چیز ہے۔ اب تم کیا سمجھو نیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور پازیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے بھیا، صرف جینے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، جیون سدھارنے کے لیے ایک ہی اس طریقہ ہے، نہ پازیٹیوٹی لانے کی ضرورت، نہ نیگیٹو رہنے کی۔ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تم کو تو کچھ آتا ہی نہیں، پھر تم تو گیانی بن جاؤ۔ وہ گیان پراپت نہ ہو جب تک تم زندگی میں کوئی بھی کام اچھا کر ہی نہیں سکتے، تم کو جوتے ہر حال میں جوتے کھانا۔ تو سب سے پہلے بچے کو بھی، بچہ اپنے یہاں ہوتا ہے اس کو سکھاؤ کہ گیان لے لو، بس گیانی ہو جاؤ۔ اسی عمر میں یدی وہ گیانی ہو جائے تو وہ کتنا بڑھیا رہے۔ گیانی ہونا ضروری ہے، گیان آ جائے تو ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ فلاں گیانی ہے کیا، اور فلاں نہیں ہے، آپ ہو، نہیں ہوگے تو وہی جوتے کھانا پڑے گا۔ اور زندگی اچھی جینا ہے، خوب جینا ہے، اور مکت ہو کے جانا ہے، آپ کو مکتی پانا ہے، موکش کو پانا ہے، 84 لاکھ یونیاں کاٹ دینا ہے، اتنا سکھی ہو جانا ہے، کبھی دکھ ہو ہی نہیں، اس جنم میں تو ہو ہی نہیں،
अगला भी कोई जन्म ही ना हो, न किसी जन्म का दुख हो, सारे, क्या कहा, क्या कहा, देह धरे का दंड है, देह धरना पड़ी है, और देह धरी है तो दंड भुगतना ही पड़े। भोग योनि है, सभी योनि भोग योनि है, सब भोगने आए हैं, दुख भोगने आए। हम कितनी भी कोशिश करें, कितने पैसे वाले हो जाए, कितने भी साधन वाले हो जाए, हम कोशिश तो, हमको पता है, हम कोशिश तो करते हैं सुखी होने की, मगर हम गलत तरीके से करते, गलत रास्ते से करते। पैसा सुख नहीं देता, इज्जत सुख नहीं देता, पद प्रतिष्ठा सुख नहीं देता, स्वास्थ्य सुख नहीं देता। फिर सुखी होते हैं ज्ञान हो तो। ज्ञानी को कभी दुख नहीं दिया जा सकता, किसी प्रकार का दुख नहीं दिया जा सकता। इसीलिए हो सके तो हम ज्ञानी बने। ज्ञान कौन सा? सिर्फ उतना ज्ञान भी एक की जरा सा, वो ज्ञान है आत्मज्ञान। ऐसा नहीं कि जब ज्ञानी बनने का कहें तो किताबें पढ़ना शुरू कर दें, किताबें पढ़ के तो, शास्त्र पढ़ के तो और अज्ञानी बनेंगे। क्योंकि शास्त्र को तुम क्या समझोगे? शास्त्र गलत नहीं है, तुम तो गलत हो ना, पढ़ने वाले तो तुम ही हो ना, तुम क्या पढ़ोगे? हैं? भगवान, देखो बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, हैं? सबके सब दुनिया भर के सिखाने वाले धार्मिक लोग सिर्फ एक ही बात सिखा रहे हैं, और वो जहर है, वो पाप। क्या सिखा रहे हैं? भगवान के पास जाओ, भगवान तुमको ये देगा, भगवान ये दे देगा, भगवान सुखी कर देगा, भगवान आनंद दे देगा, भगवान समृद्धि दे देगा, भगवान ये दे देगा। तुम और दौड़ दौड़ के भगवान के पीछे पड़ते हो, और सब शास्त्रों में लिखा, लिख दिया। ये बात भी सही है, देता तो भगवान ही है भाई, कुछ भी देता है तो हमारे पास तो नहीं था, देता तो है भगवान। अब इतनी बात सही भी दिखती है। स्वास्थ्य दिया आपको तो किसने दिया? भगवान ने ही तो दिया, प्रकृति ने ही तो दिया, एटमॉस्फेयर ने ही तो दिया। पैसा दिया, धन दिया, दौलत दी, सुख दिया, आनंद दिया, किसने दिया? भगवान ने। तो कहता हो यार क्या बात कर रहे हो यार, शास्त्र में ठीक लिखा, भगवान ही तो देता, तुम भी तो कह रहे हो भगवान तो भगवान देता है, मगर भगवान देता है तो मांगते काहे को? जब देता ही है भगवान तो मांगने का कहाँ कहा उसने कि भगवान से मांगो? है, तुमने ही पकड़ लिया, जब देता है तो मांग लो, भगवान को खुश करो। है, दूसरे से बगीचे में से गुलाब के फूल तोड़ के लाओगे, भगवान को चढ़ाओगे, वो धन मांग लोगे। गुलाब के फूल चोरी करके लाए हैं, तो खरीद के भी लाए तो पैसे चोरी करके लाए थे, उसका फूल यानी फूल भगवान को चढ़ा दी, तो भगवान क्या पागल है? वो नहीं जानता क्या चढ़ा है, वो काय के लिए चढ़ा है तुमने? है, चढ़ाओ, फूल चढ़ाना पाप नहीं है, भगवान को पूजना भी पाप नहीं है, मंदिर जाना भी पाप नहीं है, मगर पाप है कौन सा? भगवान से इच्छा रखना, भगवान से चाहना, भगवान से मांग करना। और तुम बिना मांगे जानते ही नहीं हो ना कि मांगना क्या। पता आपको क्या मांगना चाहिए, कुछ ये पता नहीं है। ये ज्ञान हो तो पता लगता है कि क्या मांगना, कैसे मांगना। ज्ञान हो जाए तो ज्ञान होने की पहली और आखिरी एक ही शर्त है, जब तक मांग है जब तक ज्ञान नहीं होगा। देखिए, जब तक मांग है जब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं है जब तक मांगते नहीं आएगा। देखना कितनी बड़ी
पेचीदा बात है कि जब तक ज्ञान न हो जाए, क्या मांगो, अपने को पता ही नहीं, मौत मांग लेते हैं। तो ज्ञान न हो तो मांगना मत, और ज्ञान हो जाए तो मांगेगा ही नहीं। क्यों मांगे फिर? ज्ञान यही तो होता कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। ज्ञान होगा तो क्या होगा कि मैं मनुष्य नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, है, और मनुष्य नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भी मेरा नहीं हूँ, तो फिर क्या मांगना? तो अपने आप ही मांग खत्म हो जाएगी। मैं जो हूँ उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, और जब नहीं चाहिए तो क्यों मांगू? है, तो अपने आप ही मर जाऊं, मांगू नहीं अपने तन के का, है, अपने आप ही हो जाएगा। और अपने आप ये हो जाएगा तो हमको आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान हो गया तो सदा सुखी होगा। और सुखी कितना? इस जीवन के लिए सुखी नहीं, फिर अरे किसी भी जीवन जाएंगे ही नहीं। जीवन क्या है? योनि में जाना, पैदा होना, जन्म लेना, और जन्म लेना तो शरीर पाना, और शरीर पाया कि तकलीफ शुरू। देह धरे का दंड है, देह जैसे ही मिली, माँ के पेट में भी देह तो धर ली, मिल गई थी, और वहीं से शुरू हुए। कितनी तकलीफ रहती होगी, न उजेला, न खाना, न पीना, न रहना, न सोना, न जगना, न गंदगी, न सफाई, न कुछ भी नहीं। इस नरक में 9 महीने पड़े रहे हैं। कितनी तकलीफ हुई होगी। देह धरे का दंड है, भुगत रहे थे, खूब भुगता, और सबने भुगता। राजा के घर पैदा हुआ उसने भी भुगता, उतना ही भुगता। अब सोचिए आप, गौतम बुद्ध को बचपन से ये पता लग गया था बस, कि अरे यार बहुत तकलीफ है। राजा का बेटा, राजा के घर में पैदा हुआ, और अभी बच्चा ही, मगर बचपन में ही पता लग गया कितना दुख है। और दुख बाप को पता लग गया, ये तो बहुत दुखी रहता, और दुखी रहता तो एक दिन घर छोड़ के भाग जाएगा। है, वही लोग घर छोड़ के भागे। तुम तो इतना भी नहीं समझते, तुम्हारे दुख को भी दुख नहीं देखते। तुम कितने दुखी हो ये भी तुमको कहाँ मालूम। दुख दिख जाए अपने, है, वही लोग ज्ञानी हुए हैं जिनको अपना दुख दिख गया कि यार इतना दुख है, इतने दुख में कैसे जी रहे हैं। और उनको जब ये दिखा तो ये भी दिखा कि ये जो साधन हम जुटा रहे हैं दुख दूर करने के, ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे तो दुख जाता ही नहीं। अब बताइए, चला जाता तो गौतम बुद्ध तो राजा के बेटे थे, क्या कमी थी? फिर भी दुख दिख रहा था, और इतना दिख रहा था कि इसी उम्र में है, एक ही बच्चा हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ, 6 महीने का हुआ और भाग गया। इतना दुख दिख रहा था। तुमको तो ज्ञान में इसलिए नहीं जाते कि तुमको अपना दुख दिखता नहीं है। दुख दिखने लग जाए ना तो क्या कर रहे हो ना? बेटा दुख दे, बहू दुख दे, पत्नी दुख दे, भाई दुख दे, बेटा दुख दे, सब तो दुख देते, सारी दुनिया दुख देती। वो हम तो उनसे आशा लगाए बैठे हैं कि ना बुढ़ापे में तो यही पकड़ेगा लाठी, सुख देगा। बूढ़े को सुखी होगा, हुआ कोई सुखी आज तक? बिना ज्ञान पाए कोई सुखी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम यदि कोई है दुनिया में तो वो है आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाना। इसके पहले न नेगेटिव न पॉजिटिव न कुछ नहीं, सब फालतू बातें हैं। हाँ, होना है तो ज्ञान प्राप्त करें बस,
यही ज्ञान का साधन। ठीक है, आज इतना ही।